doing fine, sir. How are you? I'm doing perfectly fine. Thank you for asking. Great. So it's time we'll get going now. So I wish you all a great evening. I mean, at the very outset, let me wish you a great evening because this course is going to last for 1.5 hours from this point. And I hope that you'll be totally energized and totally motivated during the course of these 1.5 hours. All right. So I hope you got time to watch the video on tenses. Did you? No, sir. Today I will do this. Okay. But see, Yes, sir. okay, if you got time, great. If you didn't get time, all right, I can understand. But slowly and steadily, you have to understand that doing homework is something absolutely inevitable. You cannot avoid it, right? Because when you do your homework, it is like a building block. ये एक छोटी छोटी ईंटों के समान है. If you want to create a beautiful wall of your achievement, it can only happen when you put these little blocks in the right place at the right time. So please ensure that you do your homework well every time, and that is going to help you to understand and do better in English. All right, so I see Sakshi. Good evening, Sakshi. How are you doing? Good evening, sir. Sir, I'm a little better now. Okay, you're a bit better. All right. So take care. How about you? I am doing perfectly fine. It's always a pleasure to meet all of you, to get to hear you all in the class. It energizes me. You can see my energy level. When I'm there in this class, I'm like I'm floating in the air and I'm all full of energy. So I want to transmit the same energy to you because if I'm not energetic, I'm sure you would not be either. So I wish you all the very best for your health, Sakshi and everyone else. Stay safe, take care of your health, and we'll just move ahead with the learning process, right? Yes, sir. Okay, great. Wonderful. So let's quickly move ahead. If you remember, everyone, those who were there in the last class, yesterday we didn't have a class, the class before that. In that class, we talked about tenses, right? So I'll just let people in because, as I mentioned, I'll be letting people in on and off. I'll be moving here and there. I greet Deepthi. Good evening, Deepthi. How are you doing? All well, Deepthi? Yes, sir. Great. Deepthi, did you get time to do your homework? Eight minutes. Yeah. So, if Yes, sir. yeah, so Deepthi, I was asking you, did you get time to do your homework? No, sir. My God, you told me that, sir, I need a day. By chance, luckily, you got a day off because I got busy with something, and I said, fine, you take a day off, everyone, and do your homework. Still, you couldn't do your homework? No? No, sir. Okay. I can just uh, take no concern of it, and it can be as light as it can be, but then please ensure that slowly and steadily do your homework, because when you do your homework, when you come to the class, you are absolutely strong. Believe me, you have something to say, you have something to respond, you have something to argue upon. So it's important that you all do your homework, right? Chale. So we'll move ahead quickly. I would just let Sarita in. Okay, so if you remember, we had talked about the verbs, and when we talked about the three kinds of the formations that we have, we talked about the verb in the infinitive form, which is the original form. Then we talked about the verb in the past tense. ये simple past में काम आएगा. आप ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्म है, ये जब हम simple past बनाएंगे तब हम सीधे सीधे इसको काम में लेंगे. I asked, I begged, I cleaned, I danced, I expected, I fixed, I greeted, I hoped, I jumped, I kissed, I laughed, I moved, I opened, I played, I reached, I studied, I talked, I used, I visited, I worked. ये as it is आपको काम में लेना है, right? उसका क्या मतलब होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा. और जहां तक बात है थर्ड फॉर्म की, तो हमने देखा था कि हमारे पास रेगुलर वर्ब्स हैं और इरेगुलर वर्ब्स हैं. रेगुलर वर्ब्स के अंदर एक विशेषता थी कि वो ईडी लेके अपना थर्ड फॉर्म बनाते हैं, और वो ईडी एग्जैक्टली सेम हमारे सेकंड फॉर्म की तरह चलता है. सो इट इज गोइंग टू बी asked, begged, cleaned, danced, expected, fixed, greeted, hoped, jumped, kissed, laughed, moved, opened, played, reached, studied, talked, used, visited, worked. ये की ध्वनि आनी चाहिए, ईडी की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए. और फिर आईएनजी फॉर्म जो बड़ा आसान है, आस्किंग, बेकिंग, क्लीनिंग, डांसिंग, एक्सपेक्टिंग, फिक्सिंग, ग्रीटिंग, होपिंग, जंपिंग, किसिंग, लाफिंग, मूविंग, ओपनिंग, प्लेइंग, रीचिंग, स्टडिंग, टॉकिंग, यूजिंग, विजिटिंग एंड वर्किंग. क्लियर है सभी को यहाँ तक प्रोनाउंसिएशन एवरीवन? इज दैट ओके? Yes, sir. Okay. Yes. Then we saw that the regular verbs
in their past tense take ed, which we already understood. Then we also saw some verbs which are not regular ones, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस चलता है. तो मैं फटाफट से पूछूंगा आपसे वर्ब, आप अनम्यूट करेंगे, आपका नाम लिया जाएगा, आपको मुझे बताना है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म. स्क्रीन पे लिखा हुआ है. चलिए अरबाज आप बताइए. टू ब्रेक. टू ब्रेक का सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म. या अरबाज. Yeah, so it is going to be. एक बार रिपीट. हाँ एक बार रिपीट कीजिए अरबाज, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी. ब्रोक. ओके, और थर्ड फॉर्म. ब्रोकन. और आईएनजी फॉर्म. ब्रेकिंग. एग्जैक्टली. चलिए नेक्स्ट आई विल टेक द वर्ड टू ब्रिंग. टू ब्रिंग का बताइए अर्ना. Brought, या brought, bringing. brought bringing. एग्जैक्टली. इसमें हमने क्या देखा एवरीवन, दैट ये सेम था सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, लेकिन ईडी वाला नहीं था ये, इसलिए हमने इसको इरेगुलर में डाला. नेक्स्ट राजेश्वरी आप हमारी हेल्प कीजिए एंड यू टेल अस. अरबाज could you be on mute please? Thank you. You want to say something Arbaz? No, sir. Okay, great, thank you. Rajeshwari. Okay, Rajeshwari, for you we have the verb to eat. Khana. To eat. Eat, to eat, ate, eaten, eating. Absolutely. To eat हो गया हमारा verb, इसका second form हो गया ate, third form हो गया eaten और इसका ing form हो गया eating. Eating. All right. Quickly हम check करते हैं. साक्षी. साक्षी आप बताइए हमारे को टू फाइंड जो वर्ब है उसके जस्ट नीचे था, ईट के नीचे टू फाइंड, उसको बताइए सेकंड, थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म. साक्षी, कैन यू हियर मी? Am I audible to everyone otherwise? Yes, sir. Okay, Deepthi, we'll ask you. Deepthi आप बताइए. Deepthi, I'll give you another verb. The verb is to give. देना. The verb is to give. Deepthi बताइए. Gave, given, giving. Absolutely. Gave, given and giving. Exactly. Sarita, can you hear me, Sarita? नाम लिया जाए, अनम्यूट कीजिए फटाफट से. सरिता बताइए. टू सी के लिए बताइए. टू सी के लिए सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म. To see, saw, said, said, saying. ओके. टू सी का हो जाएगा सॉ, सीन एंड सीइंग. टू सी का हो जाएगा सॉ, सीन, सीइंग. रिपीट कीजिए सरिता. Saw, seen, sing. Absolutely. And before I take Arna's point, I'll just quickly ask Pranjal. Pranjal, can you help us quickly with the verb to swim? To swim. Pranjal? Swimming. Exactly. Swam, swum, swimming. Exactly. Arna, you would like to say something? Oh, sorry, sir. I just accidentally used it up. Okay, चलिए. Now take care of these things as well. All right, we'll move ahead now quickly. So हमें देखिए प्रैक्टिस के साथ ध्यान रखना है. To be का was या were होता है, been and being, फिर begin का began, began, beginning, फिर हो जाएगा to break का broke, broken, breaking. इस तरीके से हमें चलना है, हमें याद रखना है, राइट? एक दो और फटाफट से पूछता हूँ, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है. टू ड्रिंक का बताइए. अरबाज. हाँ, ड्रैंक हो गया सेकेंड और थर्ड फॉर्म. Drunk. ड्रंक, DRUNK, ड्रंक. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. एग्जैक्टली राइट. अच्छा, आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को लिस्ट भेजी थी ग्रुप के अंदर, एक कंप्लीट लिस्ट. देखा आप लोगों ने? या सो उसको याद करके रखिएगा. दैट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इफेक्टिव फॉर यू बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू हाउ टू मेक थर्ड फॉर्म्स. ऑलराइट, चलिए we'll quickly move ahead. So that day we looked at the third forms. हमने देखा था कि जो verbs ऐसे हैं जो ed नहीं लेते उनको हमें याद करना पड़ेगा. जैसे हमने बात करी अभी to drink, drank, drunk, right? Sing, sang, sung, swim, swam, swum और ing verbs जो है forms वो आगे आपको याद है. ओके, हमने प्रेजेंट टेंस से चालू किया था. हमने इसमें आपको बताया था कि ये सिंपल प्रेजेंट इसको बोलते हैं हम. या अर्ना, you'd like to say something? Sir, all your screens going blank.
My screen is going blank for you. Is it the Yes, same? sir. Is it the same for everyone? You cannot see anything, everyone? No, sir. No, sir. It's okay for us. It's okay for you people. In such a case, Arna, you'll have to, I think you have to turn your camera off and you have to restart, or you have to log out and log in again quickly, Yes, sir. because it happens only when there is a network fluctuation, and it at times, you know, puts thing in wrong order. Okay, Yeah. is it fine now, Arna, for you? Yeah, now. Okay, Good. great. There's an expression that says, where there's a will, there's a way. There's a will, there's a way. So you remember the first one. Keep holding on to it. Now, if you remember, we saw in this slide that it is a regular way to say, मैं स्कूल जाता हूँ, वो खाना खाता है, हम टीवी देखते हैं, वो पढ़ाई करती है. Whenever you have to say these kind of things, you would be using this tense. All right. Okay, moving ahead. Now, if you look at the construction of this one, हमने देखा था कि हम simply उसमें s या es लगाते हैं, और कई ऐसे verbs होते हैं जिनके अंदर हमारे को ध्यान रखना होता है कि हम उसके अंदर थोड़ा चेंज करें. फॉर एग्जाम्पल, जब हम s लगाते हैं वो रेगुलर वर्ब्स के अंदर लगाते हैं, राइट? ही ईट्स, शी ईट्स एंड इट ईट्स. लेकिन उसके अलावा अगर हमारा वर्ब खत्म होता है ओ के अंदर, एस एस में, एस एच में, सी एच में, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? हम ई एस लगाते हैं. तो आप ध्यान रखिएगा इस तरीके से, आई गो, यू गो, लेकिन ही शी इट के साथ गोज, ई एस एक्स्ट्रा लगता है. ये हमने वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है, आप ध्यान से उसको सुनिएगा. इसी तरीके से मिस वर्ब जो है, आई मिस, यू मिस, बट ही मिसेस, शी मिसेस, इट मिसेस, वी मिस एंड दे मिस. इसी प्रकार से पुश. ओके, वी लास्ट क्विकली राजेश्वरी टू हेल्प अस विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ टू पुश वर्ब का पूरा हमें सुनाइए आप, आई के साथ, यू के साथ, ही, शी, इट, वी और दे के साथ. राजेश्वरी. I push, you push, she pushes, या he pushes, it pushes, they push, we push. Absolutely. I push, you push, but he pushes, she pushes, it pushes, we push and they push, right? Push करना है, नहीं धक्का लगाना. चलिए, तो ये आपको समझ में आता है. वेरी गुड. आगे हम बढ़ते हैं. हमने इसमें एक और एक्सेप्शन देखा था. एवरीवन, इफ यू रिमेंबर, हमने एक्सेप्शन देखा था. साक्षी, वांट टू से समथिंग? आई सी योर हैंड रेज्ड. I don't know, maybe that's it. You want to say something, Sakshi? कुछ कहना है? Yes, sir. बताइए. सर, मैं अभी गई थी कहीं. Sorry? हेलो. Yeah, Sakshi, you are saying something? यस सर. बताइए, what are you saying? सर, मुझे आपने पीडीएफ भेजी थी जी. होमवर्क के लिए. हाँ. एक्चुअली वो मुझे समझ नहीं आ रही थी. We'll discuss the homework, don't worry. We'll discuss the homework, right? I'll just quickly run through with 2-3 topics and then we'll discuss it. Don't worry. होमवर्क डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा, बट एक बार थोड़ा सा टॉपिक समझाऊंगा आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके, सो हमने यहाँ पे देखा था कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो ना केवल उसमें एस लगा के हमारा वो टेंस हम उसको बना सकते हैं, बल्कि ई एस लगाते भी हैं हम. एक और एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा. रादर 2 एक्सेप्शंस मैं कहूंगा आपके लिए. एक केस वो है जब हमारा वर्ब, हमारी क्रिया वाई लेटर में खत्म होती है, जैसे टू क्राई, टू स्टडी, टू फ्लाई. उस केस के अंदर हम ध्यान रखिएगा आई ई एस लगाते हैं हमारे थर्ड पर्सन के साथ. थर्ड पर्सन कौन होता है? तीसरा व्यक्ति. तीसरा व्यक्ति मतलब आई तो नहीं है, आई पहला व्यक्ति होता है, फर्स्ट पर्सन. यू होता है सेकंड पर्सन, यू, तुम. और थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी और इट, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं है. ही मतलब वो व्यक्ति, एक मेल पर्सन. शी मतलब एक थर्ड पर्सन, फीमेल पर्सन. और इट कोई निर्जीव वस्तु, वो भी थर्ड पर्सन यानी थर्ड कैटेगरी में आती है. तो ही, शी, इट की कैटेगरी वाली चीजों को हम थर्ड पर्सन कहते हैं. तो वो थर्ड पर्सन में जब भी आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि आपको वाई में खत्म होने वाले वर्ब्स के अंदर आपको आई ई एस लगाना है. उदाहरण के लिए दीप्ति पढ़ दीजिए हमारे लिए टू क्राई वर्ब को. दीप्ति. I cry, you cry, he cries, she cries, we cry, they cry. Exactly. I cry, you cry, but he cries, she cries, it cries, and we cry, and they cry. और इसी तरीके से अगर आपकी क्रिया, आपका जो वर्ब है, उसके अंदर वॉवल के बाद वाई आता है, वॉवल के बाद वाई आता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा टू से, टू प्ले, तो इसमें ए वाई है. तो उस केस में आपको फिर ध्यान रखना है कि आपको आई ई एस पे नहीं जाना, फिर आपको सीधे एस लगाना है. उदाहरण के लिए आई से, यू से, बट ही सेज, शी सेज, इट सेज, वी से एंड दे से. तो ध्यान रखिएगा कि आपको एस ए वाई एस करना है ही, शी और इट के केस में. उसका जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बदल जाता है.
I तो से होता है, you से होता है, बट he says नहीं होता, he says नहीं बोलेंगे हम, he says, she says, it says, राइट। ध्यान रखिएगा इन तीनों के प्रोनाउंसिएशन पे। फिर वापस से we say and they say। एक और उदाहरण है to play, I play, you play, but he plays, she plays and it plays, and then we play and they play। ये ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सिंपल प्रेजेंट टेंस एवरीवन? Yes, ओके थोड़ी सी स्पीड हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है और आपने अपने रिकॉर्डेड वर्जन में टेंसेस को देखा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम डू लगाकर भी अपनी बात बोल सकते हैं, हम डू लगाकर भी अपनी बात बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए आई ईट को मैं क्या बोल सकता हूँ? आई डू ईट, I do it. आई डू ईट। तो हमने ये भी सिखाया था आपको कि इसका क्या फर्क होता है। इसका फर्क ये है दीप्ति कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं, यस आई डू ईट, बिल्कुल मैं खाती हूँ, बिल्कुल मैं खाता हूँ। तो थोड़ा सा बिल्कुल वाला एक स्ट्रेस आता है, लेकिन इसको आप सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से ही बोलते हैं। डू यू ईट लाइक डू यू ईट सीरियल्स इन योर ब्रेकफास्ट? डू यू ईट सीरियल्स इन योर ब्रेकफास्ट? यस आई डू ईट, बिल्कुल मैं खाती हूँ, राइट। या आई डू में भी खत्म कर सकते हैं अपने उत्तर को, या फिर आई ईट। तो तीन उत्तर होते हैं। जब कभी भी डू वाला प्रश्न होता है वो आगे देखेंगे हम, उसमें आप कह सकते हैं यस आई ईट, यस आई डू ईट, अन्यथा यस आई डू। तीनों आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आई डू ईट, यू डू ईट, ही डज ईट, शी डज ईट, इट डज ईट, वी डू ईट एंड दे डू ईट। ये इस प्रकार से चलेगा राजेश्वरी। इसमें हमको डू लगाना पड़ता है, आई यू और उसके साथ हमारा जो वी और दे है उसके साथ तो डू लगेगा, लेकिन ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से प्रश्न भी बनेंगे, राइट। तो हम देखेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या करना है आपको? डू और डज, इनके साथ नॉट लगाना है, राइट। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, चलिए अरबाज आप बताइए, मैं गाता नहीं हूं, मैं गाता नहीं हूं, कैसे बोलेंगे मैं गाता नहीं हूं? आई कैन नॉट हेयर यू अरबाज, आप बोल रहे हैं तो आई कैन नॉट हेयर यू एट ऑल। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक अरबाज फॉर सम रीजन। ओके अरबाज, हेलो। हाँ अब बोलिए, मैं गाता नहीं हूं कैसे बोलेंगे आप इसको इंग्लिश में? आई डोंट सिंग। आई डोंट सिंग या फिर आई डू नॉट सिंग, राइट। आई डोंट सिंग या आई डू नॉट सिंग, एकदम ठीक है। चलिए फटाफट से प्रांजल आप बताइए, वो स्कूल नहीं जाती है, वो स्कूल नहीं जाती है। she does not go to school. Exactly, she does not go to school, or you could also say Pranjal, she doesn't go to school, right? ये आपको क्लियर है, हमने देख लिया था। she doesn't go to school या फिर she does not go to school, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमें does और do के साथ not लगा के हमें बताते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने आपको दिखाया था कि do not को don't बोल सकते हैं आप। I do not eat, I don't eat, you do not eat, you don't eat, he does not eat, he doesn't eat, she does not eat, she doesn't eat, it does not eat, it doesn't eat, अंत में we do not eat, we don't eat, और फिर they do not eat, they don't eat, right? ये क्लियर है आपको? ओके अब अगर आपको प्रश्न पूछना है तो हम क्या करते हैं, हम do और does को पहले स्थान पे ले आएंगे। दीप्ति, एवरीवन, सरिता, याद है आपको? और फिर हम प्रश्न पूछेंगे, राइट। चलिए मैं फटाफट से आप सबसे एक एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब सुनना चाहूंगा। सरिता, ओके सरिता, यू देयर? सरिता अनम्यूट कर लीजिए फटाफट से। सरिता, डू यू स्पीक हिंदी? Do you speak Hindi? Yes, I do it. Yes, I do. Do it in me. इट लगाने की आवश्यकता नहीं, आपको क्या बोलना है सरिता? Yes, I do speak. Yes, I do speak हिंदी। अब देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं सरिता के पास। पहला Yes, I do. Yes, I do, बिल्कुल ठीक है। आप अपनी बात यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो सरिता। Yes, I do, बिल्कुल मैं बोलती हूँ Yes, I do, या फिर Yes, I speak हिंदी, या फिर yes I do speak हिंदी, ठीक है। लेकिन जब आप ये बोलोगे सरिता yes I do, तो उसके बाद और कुछ नहीं बोलोगे, yes I do, खत्म बात, बिल्कुल बोलती हूं मैं yes I do। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट Yes, sir. राजेश्वरी, Yes, sir. राजेश्वरी, डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? राजेश्वरी, डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? Yes, sir, I do understand this topic. वेरी गुड, yes I do understand this topic, yes I do, या फिर yes I understand, या फिर yes I understand, right? Okay. दीप्ति, दीप्ति, do you write letters? दीप्ति, do you write letters? Yes, I write letter. Yes, I do. या ठीक है, yes I do write Yes. letters,
Yes, I do write letter. बिल्कुल ठीक है, तीनों उत्तर सही हैं। दीप्ति आप कह सकते हैं यस आई डू राइट लेटर्स, यस आई राइट लेटर्स, अन्यथा यस आई डू, और Yes, I do. बात खत्म। यस आई डू। ओके, अर्णा आप बताइए। अर्णा, डज योर डज योर फ्रेंड प्ले इन द पार्क? डज योर फ्रेंड प्ले इन द पार्क? Yes, she does. Yes, she does. Does your friend play in the park? तो इन्होंने कहा yes, she does. बिल्कुल वो खेलती है। Yes, she does. अब ये क्या क्या ऑप्शंस हो सकते थे अर्णा के पास? Yes, she plays in the park. Yes, she does play in the park. या अन्यथा आखिरी में she could have said the way she rightly said, yes, she does. क्लियर है सभी को? Does या do लगने के केस में, डज या डू लगने के केस में हम उस क्रिया का असली रूप लगाते हैं। फिर हम ये नहीं कहेंगे, अर्णा को मैंने ये नहीं पूछा डज योर फ्रेंड प्लेज, नहीं, क्योंकि फ्रेंड थी लेकिन उसके साथ भी हमने प्लेज नहीं लगा, हमने प्ले बोला क्योंकि हमने डज को पहले स्थान पे ले लिया है। तो याद कीजिए जब डज या डू लगता है तो हमारी मेन क्रिया जो है वो आ जाती है इस तरीके से, तो फिर हमें प्लेज नहीं लगाना। राइट, कोई कुछ कहना चाह रहा है? अनम्यूट करके बोलिए। क्लियर है सभी को? राइट, okay. Yes, sir. Okay, I'll ask Sakshi quickly one question. Sakshi, do you go to university? Sakshi, do you go to university? Can you repeat, sir? Do you go to university, Sakshi? Yes, I go to university. I go university. सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू गो टू यूनिवर्सिटी, तो आपके पास ऑप्शन, आपने पहला सही बोला यस आई गो टू यूनिवर्सिटी, आई गो टू यूनिवर्सिटी। दूसरा ऑप्शन था आपके पास, एक शब्द में कैसे अपनी बात बोलोगे साक्षी? यस आई Yes, I डू, yes, I go university. यस आई डू। Yes, yes, sir. आप बहुत संक्षिप्त में अपना आंसर दे सकते हैं एवरीवन। यस आई डू, बिल्कुल मैं जाती हूँ, या फिर साक्षी यस आई गो टू यूनिवर्सिटी, यस आई गो टू यूनिवर्सिटी। क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes. या अर्णा, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Are we gonna discuss the homework? Arna, I just now said yes, we will do it. Give me some time, right? Okay. Yeah. All right. So whenever you have these kind of things, you would say do or does to make a question out of it. All right. Then अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले टेंस पे। मैं कुछ टेंसेस आपको सिखाऊंगा, उसके बाद हम होमवर्क चेक करेंगे, राइट? बिकॉज आपको बाय देन आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। अब जो हम टेंस देखने वाले हैं उसके लिए हमें पहले टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब को समझना आना चाहिए। टू बी वर्ब क्या होता है? अपने बारे में हम बताते हैं, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, यू आर एंड दे आर। क्लियर है? यहां तक सभी को याद है वाला कॉन्जुगेशन? यस, Yes, sir. ओके। Yes, sir. ये आपको याद है, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, यू आर। ये यू आर वापस हमने इसे लिखा है आप सभी के लिए, राइट? यहाँ पे आप अकेले थे या तुम अकेले थे, लेकिन यहाँ पे आप सभी हैं या तुम सभी हो, तो हम इसको यू दो बार लिखा है, इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। और अंत में दे आर, वे लोग हैं। इसका नेगेटिव करना है तो आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट। ठीक है? और इसको एक और तरीके से बोलते हैं हम आई एंट, आई एंट, आई एंट मतलब आई एम नॉट। हम इसको आई एमेंट नहीं बोलते, राइट? ये गलत है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है आई एंट। ओके, देन यू आंट, आर नॉट को आंट, आंट, राइट? थोड़ा सा आंट करके बोलना है। यू आंट, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't and they aren't। ये aren't की ध्वनि थोड़ा सा र टच करके निकल जाए, aren't, aren't, आंट नहीं है, आंटी वाला आंट नहीं है, aren't, थोड़ा सा र की ध्वनि आएगी, राइट? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। जब नेगेटिव बोलना है तो आई एम नॉट या आई एंट, या फिर यू आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, देन वी आंट, then you aren't and then they aren't, या फिर आप they are not, we are not भी बोल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और जब आपको प्रश्न पूछना है क्या मैं हूं, am I, तब am I, are you, क्या तुम हो, is he, क्या वो है, is she, क्या वो है, is it, क्या ये है, ऐसा है, are we, क्या हम हैं, are you, क्या आप हैं, और अंत में are they, क्या वे हैं, और जो भी हैं वो कोई आप उनकी कोई विशेषता पूछ सकते हैं या उनका कोई स्टेट पूछ सकते हैं कि वो किस स्थिति में है, या क्या उनका नेचर है, या क्या उनका स्टेट है, लाइक वो स्टूडेंट्स हैं या वो कोई प्रोफेसर है या कौन है, वो आप जान सकते हैं।
Yeah, Pranjal, you would like to say something? No, sir, sorry. No, it's okay. All right. So how do you ask this question? Anyone can respond. क्या आप टीचर हैं? क्या आप टीचर हैं? Yeah, Arna. Yes, I am. No, that's a question you have to ask, Arna. What question would you ask when I say this in Hindi? क्या आप टीचर हैं? How do you translate that in English? Rajesh, Are you a teacher? are you a teacher? Are you a teacher? And how do you respond to that, Rajeshwari? If you were a teacher, let's imagine, how would you respond? Yes, I am a teacher. Exactly. आप कह सकते हो yes, I am a teacher. या फिर शॉर्ट में क्या बोलोगे राजेश्वरी? Yes, I am. yes, I am. Yes, I am. आप I am से भी अपनी बात को बोल सकते हैं, राइट? ये ध्यान रखिएगा. चलिए, ये हमारे ना केवल यहाँ काम आता है अपना स्टेटस बताने के लिए. I am a teacher. I am a student. I am Indian. I am tired. I am happy. I am fine. अपने हालचाल बताते हैं हम. तो ना केवल ये इस केस में काम आएगा, बल्कि अब हम जब सीखेंगे ना सिंपल जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें भी ये काम में आएगा. मैं आपको बताऊंगा कैसे. ओके, अब एक बार हम टू हैव देख लेते हैं. कोई चीज आपके पास होती है तब हम कैसे उसको काम में लेते हैं. सुन लीजिए. आई हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, वी हैव, यू हैव, दे हैव. बीच में हैज चलता है जो इट, शी और ही के लिए आता है, थर्ड पर्सन के लिए. इसका नेगेटिव हो जाएगा I don't have, I do not have. You don't have, you do not have. He does not have, he doesn't have. She does not have, she doesn't have. It does not have, it doesn't have. We के साथ we do not have, we don't have. You के साथ you don't have, you do not have. और अंत में they don't have या फिर they don't have. Right? मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं इस प्रकार से इसको काम में लूंगा. और अंत में क्या मेरे पास है? Do I have? क्या तुम्हारे पास है? Do you have? क्या उसके पास है? Does he have? क्या उसके पास है? उस फीमेल पर्सन के पास Does she have? क्या उस चीज के पास वो पोजीशन है? Does it have? आगे Do we have? क्या हमारे पास है? Do you have? क्या आप लोगों के पास है? उनके पास है क्या? Do they have? Do they have? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Anyone? Unmute and say yes or whatever your question is. Yes, sir. Okay. ओके तो इसको हमें याद रखना है. देखिए इसको मेमोराइज करिएगा. मेमोराइज इसलिए करना है ताकि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही निकले मुंह से और हमें याद हो. तो आपको कैसे बोलना है? I have, I don't have. You have, you don't have. He has, he doesn't have. She has, she doesn't have. It has, it doesn't have. We have, we don't have. They have and they don't have. ये don't और does का जो एक फॉर्म है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा when you practice it regularly. Alright, आगे बढ़ते हैं. अब हम आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि चलता जा रहा है. इसमें बड़ा आसान काम है. वो आईएनजी वाली लिस्ट याद है आपको? सिंगिंग, डांसिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग. उसी को काम में लेना है. और आपको उसके पहले क्या लगाना है? आपको लगाना है आपका टू बी वर्ब. आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, दे आर एंड यू आर. ये आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा. मैं खाना खा रहा हूं. कैसे बोलेंगे दीप्ति? मैं खाना खा रहा हूं. I'm eating. I'm eating. Okay, Arna, could you put your hand down? I see it's raised. If there's no question. Yeah, sorry. Yeah, please be a little careful with that. Okay, because I get confused if you have a question or not. That's why. Okay, तो आपने क्या बताया दीप्ति? Could you repeat, दीप्ति? I am eating food. I'm eating. I am eating food. Absolutely. I am eating food. मैं खाना खा रही हूँ. मैं खाना खा रहा हूँ. Exactly. वो पढ़ रही है राजेश्वरी. वो पढ़ रही है. She is studying. She is studying. She is studying. Exactly. Okay. सरिता, हम डांस कर रहे हैं. हम डांस कर रहे हैं. सरिता, can you hear me? Yes, sir. बताइए, हम डांस कर रहे हैं को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? We are. We are dancing. Exactly, we are dancing. हम डांस कर रहे We हैं. are dancing. We are dancing. हम डांस कर रहे हैं, right? We are dancing. Okay. साक्षी आप बताइए. Yes, sir. तुम लिख रहे हो. तुम लिख रहे हो. You are writing. हाँ, you के बाद क्या बोला आपने साक्षी? You writing. Writing. चलिए एक बार रुक जाते हैं हम. जो साक्षी ने कहा मैंने लिख दिया. You writing. बीच में क्रिया आएगी ना साक्षी?
You are writing. हाँ, you are writing, तुम लिख रहे हो, you are writing, ठीक है, you are writing. और एक और टेक्निक है, ध्यान रखिएगा, अगर इसको प्रश्न बनाना है, इसको प्रश्न बनाना है, क्या तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, तो हाउ वुड यू मेक दैट एज अ क्वेश्चन? Are you writing? एग्जैक्टली. सो आपके पास दो ऑप्शन है. एक तो जो दीप्ति ने कहा कि हम सर आर को पहले स्थान पे ले आएंगे और यू को पीछे भेज देंगे, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग. या फिर एक और क्या तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है साक्षी, जो आपने कहा ना यू आर राइटिंग, इसको एक टोन के साथ बोलिए, प्रश्नवाचक टोन के साथ. राजेश्वरी कैसे बोलेंगे इसको क्वेश्चन टोन में? Are you writing? नहीं, आर यू के साथ नहीं, ये वाले को बोलिए. Do you writing? नहीं नहीं, डू तो नहीं बैठेगा, डू तो बिल्कुल गलत है राजेश्वरी. आपको यू आर राइटिंग को टोन के साथ बोलिए. And same thing, sir. हाँ, सेम थिंग. यू, हाँ You are writing. हाँ, एग्जैक्टली, यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, एग्जैक्टली. तो ये भी एक प्रश्न होता है दीप्ति, राजेश्वरी एंड एवरीवन एल्स. यानी आपको क्या करना है, कई बार हम लोग को अगर लगता है कि क्या मैं टोन ले लूं, क्या मैं उसको प्रश्नवाचक तरीके से बोलूं, तो क्या प्रश्न बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा. तुम लिख रहे हो, हिंदी में भी तो बोलते हैं ना तुम लिख रहे हो, लेकिन प्रश्न बनाएंगे तो दीप्ति क्या बोलेंगे? तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, तो वो प्रश्न बन गया. तो एग्जैक्टली सिमिलरली इंग्लिश में आप क्या करते हो, यू आर राइटिंग को टोन लेके बोल दो तो प्रश्न बन जाएगा, यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग. तो वो भी एक प्रश्न है. अन्यथा जो दीप्ति ने कहा, हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्जन बोलते हैं. इन्वर्जन में क्रिया को पहले लिखते हैं, उस व्यक्ति को दूसरे स्थान पे, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग. चलिए इसका आंसर देते हैं फटाफट से. प्रांजल, आपको ना में आंसर देना है, नहीं तो आर यू राइटिंग? प्रांजल, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन? मैं नहीं लिख रही हूं. I am not writing. आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग. क्लियर है सभी को? मैं नहीं लिख रही हूं, आई एम नॉट राइटिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. Okay, let's go to the next one. So if I open this next one, I'll just quickly move to the PPT and I'll help you with this one. So you saw कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम I am not, वो जो हमने कंस्ट्रक्शन सीखे थे उन कंस्ट्रक्शन पे हम जाएंगे और उससे हमारा काम हो जाएगा. Alright, तो अब हम चलते हैं फटाफट से. Right, so this was the one. Okay, चलिए कुछ हम एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं. तो बड़ा आसान तरीका है, हमें क्या करना है, व्यक्ति को ढूंढना है. आई है या यू है या ही है या शी है या इट है या वी है या दे है या यू है, जो भी है. उसके साथ इज एम आर, जो भी उसके साथ कॉम्बिनेशन जाता है वो लगाना है और आईएनजी फॉर्म लगा देना है. उदाहरण के लिए मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग. मैं पढ़ रहा हूं या वो पढ़ रही है, शी इज रीडिंग. और अंत में वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग. क्लियर है यहां तक सभी को? दे आर प्लेइंग. Yes, sir. इस टेंस का मतलब क्या है कि ये चल रही है प्रक्रिया, ये प्रक्रिया चल रही है. हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, डोंट डिस्टर्ब अस. वी आर स्टडिंग, हमें परेशान मत करो, हम पढ़ रहे हैं. डोंट डिस्टर्ब अस, वी आर स्टडिंग. इस क्षण हम पढ़ रहे हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेगेटिव देख लेते हैं. नेगेटिव में क्या करना रहेगा आप लोगों को, आपको सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, फिर हमारा आईएनजी फॉर्म लगाना है. जो जैसे प्रांजल ने कहा ना, मैं नहीं लिख रही हूं सर, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग. राइट, सो इस प्रकार से मैं खाना नहीं खा रहा हूं. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. आई विल क्विकली आस्क, whom should I ask? यस सरिता, आप बताइए, मैं खाना नहीं खा रही हूं. कैसे बोलेंगे सरिता, मैं खाना नहीं खा रही हूं? Not eating food. आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट. Not eating food. परफेक्ट सरिता. ओके, साक्षी आप बताइए, वो पढ़ नहीं रही है, वो पढ़ नहीं रही है. She is not studying. शी इज नॉट स्टडिंग. वेरी गुड. शी इज नॉट स्टडिंग या शी इज नॉट रीडिंग, क्योंकि हिंदी में पढ़ने का मतलब पढ़ाई करना भी होता है और कोई चीज को आप पढ़ रहे होते हो सरसरी नजर से, तो भी उसको बोलते हैं पढ़ना. तो इंग्लिश में हो जाता है शी इज नॉट रीडिंग या फिर शी इज नॉट स्टडिंग, दोनों ठीक है. और अंत में वे खेल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग. क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, अब अगर आपको प्रश्न पूछना है, तो जैसे दीप्ति ने किया था ना प्रश्न, आर यू, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सीधा हमारे को इसको घुमा के रखना है. तो हमें क्या करना है, एम आई, आर यू, इज ही, इज शी, इज इट, आर यू, आर दे. राइट, इस तरीके से. राजेश्वरी आप ध्यान रखिएगा, एवरीवन आप भी ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे डू और डज की आवश्यकता नहीं है. डू और डज यहाँ नहीं लगेगा. राइट, डू और डज कहाँ लग रहा था, डू और डज लग रहा था हमारे सिंपल प्रेजेंट में. डू यू सिंग, डू यू सिंग, तुम गाते हो.
डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डज शी प्ले इन द गार्डन, क्या वो गार्डन में खेलती है? उस केस में डू या डज लगता है प्रश्नवाचक में, ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कभी भी डू डज नहीं लगाएंगे, प्रश्न बनाने के लिए हम हमेशा इन्वर्जन कर देंगे। इन्वर्जन का मतलब क्रिया पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे आ जाएगा हमारा व्यक्ति। तो क्या मैं खाना खा रहा हूं? बड़ा अजीब सा सवाल है भाई, खा रहा है और दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हो सकता है कि वो खाना नहीं खा रहा था, बट लोगों ने अरे आप सुबह पहले खाना खाने लग गए, अभी तो आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह तो कीजिए। एम आई ईटिंग फूड? ये मेरी दवाई है जो मैं मिला के खा रहा हूँ, खाना नहीं खा रहा था मैं। एम आई ईटिंग फूड? एब्सोल्युटली नॉट, आई एम नॉट ईटिंग फूड, राइट? ये इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट है। क्या वो पढ़ रही है दीप्ति? क्या वो पढ़ रही है? Is she reading? इज शी रीडिंग? लेकिन आपको अब बताना ये भी साथ में दीप्ति, नहीं वो नहीं पढ़ रही है। No. No, she is not reading. Absolutely no, she is not reading. No, she is not reading, जिसको आप ये भी बोल सकते हो दीप्ति, no, she isn't reading. No, she isn't reading. मैं लिख देता हूँ आपके लिए. I'll just try to write. I hope it doesn't go away. No, I think there's some technical glitch. So I'll just, yeah, I think there's some problem. Anyway, I'll just unfreeze it and then I'll quickly go to this one. All right. So when you see no, she is not reading, तो आपके पास एक और ऑप्शन था दीप्ति, आपने कहा no, she isn't reading, right? is not को isn't बोल सकते हैं. That's also one of the ways जिसके अंदर आप अपनी बात को रख सकते हैं. Alright, we'll just quickly look at this one now. So यहाँ पे हमने देखा था कि आप किस तरीके से इसको नेगेटिव के अंदर बना रहे थे. Alright. So no, she is not reading. वे खेल नहीं रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा राजेश्वरी? वे खेल नहीं रहे हैं. They are not playing. They are not playing, right? Right. अभी मैं इस पे आ जाता हूँ जिसमें हम प्रश्न पूछेंगे. तो राजेश्वरी आप बताइए, क्या वे खेल रहे हैं? क्या वे खेल रहे हैं? Are they playing? Are they playing? क्या वे खेल रहे हैं? चलिए अगला बताइए. एनीवन अनम्यूट करके बताएगा. क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? Are you okay? Yeah. So Arna, what did you say? Could you repeat? Are you talking to me? All right, Arbaz. Are you talking with me? Are you talking to me? Are you talking to me, right? Are you talking to me? Because you talk to someone, right? With is also correct. It's not incorrect, but that's a different formulation altogether. But when you're confirming it, are you talking to me? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, right? Are you talking to me? Okay. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Present continuous के अंदर हम ये बताना चाहते हैं. Yeah, Arbaz, you can be on mute now. Thank you. Yeah. Arbaz, could you be on mute, please? You want to say something, Arbaz? All right, let's carry on. So present continuous के अंदर आप ध्यान रखिएगा, वो जो एक्शन है वो चल रहा है, वो जो हरकत है वो हो रही है उस समय पे. So I am reading a book at the moment. आप at the moment लगा के भी उसको और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इस क्षण में मैं पढ़ रहा हूं, या फिर अभी वे खेल रहे हैं. They are playing right now. राइट नाउ जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रेस देते हैं इस फैक्ट पे कि वो घटना उस समय चल रही है. ओके, नेक्स्ट. अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसा होता है उसको समझते हैं. इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? समझ में आ रहा है आप लोगों को टेंसेस? Yes, sir. क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेंस है. ये दिखाता है कि वो एक्शन पूरा हो चुका है. आपको याद होगा जब हमने टेंसेस की क्लास चालू की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो जाना, उस चीज का समाप्त होके, पूर्ण होके समाप्त हो जाना. दैट थिंग गेट्स ओवर, इट गेट्स फिनिश्ड, राइट? हाउ डू डू? बड़ा आसान तरीका है इसमें. आपको थर्ड फॉर्म वाली लिस्ट याद है? क्लीन्ड, लर्न्ड, फिर आपने देखा था रिटन, राइट, wrote, written, थर्ड फॉर्म था written, या फिर sing, sang, sung, drink, drank, drunk. तो ये जो थर्ड फॉर्म्स थे इसको हमें याद रखना है, उसको आपको काम में लेना है, और उसके साथ आपको कौन सा वर्ब काम में लेना है? टू हैव. और हैव याद है आपको? आई हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, और आगे यू हैव, वी हैव एंड दे हैव. और नेगेटिव में आपको याद है आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, ही डजंट हैव, शी डजंट हैव, इट डजंट हैव, you don't have, we don't have and they don't have. ये आपको याद होगा अच्छे से. इसके साथ क्या आपको ऐड करना है? सिर्फ थर्ड फॉर्म और आपका काम हो जाएगा. उदाहरण के लिए, या someone wants to say something? Arna? Sir, we use us. Sorry, we use us.
Yeah. uh, We नहीं अस हम एज द लिस्ट आई यू उस केस में आप पूछ रहे हो अस because in sentences that is different. you'll have to reframe your question. I didn't get the point. Us in which sense, Arna? Like yeah, in the like in the list type of. Yeah, so in the list we do not have us. अब सुन लीजिए अर्णा का क्वेश्चन है कि जो us होता है ना हम वो कहाँ होता है तो सुनिएगा जो us है वो एक और लिस्ट है वो मैं आपको अभी सुना देता हूँ फटाफट से ताकि आप कंफ्यूज ना हो थोड़े समय तक आपको क्लैरिटी रहेगी और फिर जब हम उसको ऑफिशियली देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी दो लिस्ट है एक होती है लिस्ट हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस की जो लोग करता है डूअर है उसमें कौन कौन आता है आई यू ही शी इट यू यानी यू ऑल फिर वी यानी हम सब और अंत में आता है दे यानी वे लोग ये सब डूअर्स हैं अर्णा ये लोग एक्शन करते हैं आई स्पीक यू स्पीक ही स्पीक्स शी स्पीक्स इट स्पीक्स वी स्पीक यू स्पीक एंड दे स्पीक ये सब डूअर्स हैं ये या तो बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं या गाते हैं दे डू एन एक्शन तो अर्णा का क्वेश्चन है फिर सर इसमें अस कहाँ चला गया अस तो अस वाली जो लिस्ट है एवरीवन वो होती है एक और लिस्ट उसके अंदर हम क्या देख उनको हम आगे सीखेंगे उसी लिस्ट होती है आई बन जाता है मी आई बन जाता है मी यू रहता है यू ही बन जाता है हिम शी बन जाता है हर इट रहता है इट दे बन जाता है देम और जो अर्णा ने पूछा अस वी बन जाता है अस क्लियर है आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आया आपको ये वहां वाली लिस्ट में से है ये हम आगे देखेंगे ये हम आगे देखेंगे जब हमें कोई व्यक्ति चाहिए होता है एज एन ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट की तरह काम में आता है अर्णा ये डूअर की तरह काम में नहीं आता तो हमारे पास लिस्ट क्या हो जाती है मी यू हिम हर इट हिम बॉय के लिए हर गर्ल के लिए इट हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग के लिए और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास अस के लिए जो वी है उसके लिए हो जाएगा अस और दे के लिए हो जाएगा देम तो ये हमें ध्यान रखना है तो आप जब ये बोलते हैं ना आपने एक सवाल बोला था अभी किसी ने शायद आई थिंक अर्णा आपने भी जवाब दिया था क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं आर यू टॉकिंग टू क्या बोला था मी तो ये जो मी है ये पाया जाता है प्रीपोजिशंस के साथ या ऑब्जेक्ट्स के रूप में बाद में वाक्य के बाद में इसको शुरुआत में नहीं आपको आप इसको लिखेंगे या आपको ये कभी नहीं मिलेगा शुरुआत में तो कौन मिलेगा आई यू ही शी इट वी दे या फिर वी और यू ये लोग मिलेंगे राइट तो हम इसको आगे देखेंगे चिंता मत कीजिए बट रेलेवेंट पॉइंट था कि सर ये मी कौन सी लिस्ट में जाता है ही के साथ जो हर होता है या हिम होता है वो कौन सी लिस्ट में जाता है तो हम इसको आगे देखेंगे All right, so coming back to the point, I see Rubina. Rubina, you there? You got disconnected, I suppose? Or you were not there? Yes, sir, because my supervisor told me Okay, some okay. work that I have to All right. go out. No, not a problem. Not a problem. So you can catch hold of the recorded version. You would get to know what we have done so far. Yes, sir. All right, so we are moving ahead now to present perfect. यानी ये इसमें दो बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट इसका जो असर होता है ना वो वर्तमान तक आता है यानी ये बात पास्ट में नहीं खत्म हुई है प्रेजेंट तक इसका असर होता है पर ये खत्म हो चुकी है परफेक्ट बताता है कि ये पूर्ण हो चुका है राइट अब आप इसको देखिए कैसे बनता है ये आई हैव ईटन फूड मैंने खाना खा लिया है मैंने खाना खा लिया है जब आप लगाते हो ना है तो इसका मतलब है आप ट्रैवल करके कहां तक आए वर्तमान तक मैंने फिल्म देख ली है मैंने चाय पी ली है मैंने काम कर लिया है ये जो है लगाते हैं ना आप हिंदी में इसका मतलब है कि आप कौन सा टेंस कह रहे हैं आप बोल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कई बार आप इसको है के बिना भी बोल देंगे वो भी गलत नहीं है मैंने काम कर लिया मैंने चाय पी ली मैंने टीवी देख लिया राइट वो भी सही है क्योंकि उसमें भी आपका जो एक्शन खत्म हो रहा है वो वर्तमान तक आके खत्म हो रहा है दैट शोज अब आप पूछोगे पर सर इसका अलग भी तो हो सकता है मैंने काम किया मैंने चाय पी मैंने टीवी देखा ये और पास्ट में पीछे होता है इसलिए आप ध्यान रखिएगा अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा अभी आपको इतना सा बोलना है हिंदी के अंदर अगर आप सोच सकते हैं तो आप हिंदी में क्या सोचेंगे मैंने काम कर लिया है या मैंने काम कर लिया जब आप ये बात बोलेंगे तो आपका जो एक्शन खत्म होने का जो रेफरेंस पॉइंट है वो टिल प्रेजेंट तक ट्रैवल करता है इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट और वो खत्म हो चुका है इसलिए परफेक्ट यहां तक ठीक है अब कैसे बनता है ये आप कोई भी डूअर उठाएंगे आई यू ही शी इट वी दे जो भी आपके व्यक्ति है उसके बाद हैव वर्ब को लगाना है और थर्ड फॉर्म को लगाना है तो आपका काम हो गया मैंने खाना खा लिया मैंने खाना खा लिया है आई हैव ईटन फूड मैंने खाना खा लिया है उसने किताब पढ़ ली हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश उसने किताब पढ़ ली एनीवन रेज योर हैंड आई विल आस्क यू She read the book.
Yeah, you have to raise your hand. Rubina, yeah. He has written the book. नहीं, उसने किताब लिखी नहीं है, उसने किताब पढ़ ली है. Oh, he has read the book. अच्छा, क्या She आपको has read the book. यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है. READ कैसे पढ़ते हो उसको रुबीना? He has read the book. Absolutely, she has read the book. She has read. ये थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा. ये थर्ड फॉर्म है. ये आया है कौन सी फैमिली से? टू रीड, रेड, रेड, रीडिंग. रेड, रेड, रीडिंग, दोनों रेड रेड चलते हैं. आई हैव रेड या आई रेड, दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों में रेड आता है. अभी हम जो बात कर रहे हैं एवरीवन, हम बात कर रहे हैं आई हैव रेड, आई हैव सीन, आई हैव स्पोकन, आई हैव संग. ये थर्ड फॉर्म्स लगा रहे हैं हम और साथ में हैव वर्ब को रख रहे हैं. यहां तक आप ध्यान रखिएगा. फटाफट से कुछ सवाल पूछता हूं आप लोगों से. राजेश्वरी, मैं समझ गई, मैं समझ गई हूं, मैं समझ गई हूं. I understood. ओके. अब जो आपने आई अंडरस्टूड बोला ना, बड़ा अच्छा सा एक आपने वाक्य बनाया है, आई अंडरस्टूड. इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट. एवरीवन याद कीजिएगा, सिंपल पास्ट मैंने क्या बताया था आप लोगों को, याद कीजिएगा. मैंने सिंपल पास्ट में बताया था. इस लिस्ट पे चलते हैं थोड़ा सा पीछे फटाफट से. यस, ये जो लिस्ट है इसमें आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बताया था इस लिस्ट के अंदर, I could have even gone that way. It would have been easier. Anyway, so इस वाली लिस्ट पे आप ध्यान दीजिए. मैंने आपको बताया था कि अगर आप सीधे ये वाला उठा के लगाते हैं ना राजेश्वरी, तो आप बना देते हैं सिंपल पास्ट. ये सिंपल पास्ट है. अभी हम बात क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की. तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ये वाला उठाना है. तो आप कहोगे सर पर वो तो सेम ही तो रहता है, अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड ही रहता है. जो अंडरस्टूड है वर्ब, वो अंडरस्टैंड से आया है दीप्ति, और उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है. यहाँ पे भी अंडरस्टूड होता है, वो इस वाली कैटेगरी में चला जाएगा कि वो ईडी नहीं लेता, लेकिन वो दोनों में सेम रहता है. जैसे यहाँ पे था ना ब्रॉट ब्रॉट, बॉट बॉट, वैसे अंडरस्टूड अंडरस्टूड. तो राजेश्वरी ने जवाब दिया जब मैंने इनको कहा कि आप बोल के बताइए मैं समझ गई हूं. इन्होंने कहा आई अंडरस्टूड सर. तो मैं इनको करेक्ट करता हूं और मैं इनको कहता हूं कि अंडरस्टूड जो आपने बोला राजेश्वरी, वो आपने यहाँ वाला उठाया और आई के साथ लगा दिया. लेकिन आपको यहाँ वाला उठाना था जिसमें आपको हैव लगा के बोलना था, क्योंकि वो हमारा प्रेजेंट I परफेक्ट था. understood. एग्जैक्टली. तो बताइए आई हैव अंडरस्टूड, क्या फर्क है राजेश्वरी आई अंडरस्टूड और आई हैव अंडरस्टूड के बीच में? कुछ फर्क है थोड़ा बहुत? सर क्योंकि ये प्रेजेंट में हो रहा है, हाँ, काम कंप्लीट हुआ है. एग्जैक्टली. इसका असर जो है वो प्रेजेंट तक आया है, इस वजह से आपने इसको इस प्रकार से बोला है. आप कह सकते हैं पर सर इसमें कोई ज्यादा फर्क है क्या? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. लेकिन जब आप कहते हैं ना राजेश्वरी आई अंडरस्टूड, तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं उस समय में. मुझे नहीं पता कि अभी जो ताजा ताजा समझाया है वो समझ में आया या नहीं आया. यस सर, आई हैव अंडरस्टूड. हाँ सर, मैं समझ गई. समझे आप? आई हैव अंडरस्टूड. लेकिन उस दिन मैंने आपको बताया था राजेश्वरी, डिड यू अंडरस्टैंड दैट डे? यस सर, आई अंडरस्टूड. मैं समझ गई, आई अंडरस्टूड. राइट? तो वो पास्ट के अंदर जाएगा. अगर वर्तमान तक असर आ रहा है तो हैव लगाना पड़ेगा, हैव या हैज, जो भी उस व्यक्ति का फॉर्मेशन है. और इसीलिए हम इसका क्या नाम बोलते हैं रुबीना? इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यानी प्रेजेंट तक इसका असर आता है और ये परफेक्ट यानी पूर्ण हो चुका है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. चलिए एक दो फटाफट से सेंटेंसेस पूछता हूं मैं आप लोगों से. उससे पहले एक बार आपको कंस्ट्रक्शन सिखा देता हूं. कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है इसका. आपको क्या करना होगा, आपको जो भी व्यक्ति है उसके साथ हैव या हैज का उसका कॉन्जुगेशन लगाना है और साथ में थर्ड फॉर्म लगा देना है, आपका काम हो जाएगा. ओके, फटाफट से पूछते हैं. अरबाज, मैं तो आपको अंग्रेजी में बताने लग गया. आपको बोलना है अरबाज, वो उसने बोल लिया है. उसने बोल लिया है. उसने बोल लिया है मतलब बोलना है. हाँ, बोलना, टू स्पीक. हाँ. She has spoken. She has spoken. एग्जैक्टली, शी हैज Yeah. स्पोकन. शी हैज स्पोकन. उसने बोल लिया है सर. अब उसको बार बार आप क्यों बात बोल रहे हो? उसने तो बोल लिया है ना, शी हैज स्पोकन, राइट? अब आप बोल सकते हो सर हिंदी में आपने अटपटा सा बोला, उसने बोल लिया है. ऐसे थोड़ी बोलते हैं. लेकिन अब अगर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो उसने बोल लिया है मतलब उसका असर वर्तमान तक आया. शी हैज स्पोकन सर, शी हैज स्पोकन, शी हैज स्पोकन. ओके प्रांजल, उसने पी लिया है. She has drunk. वापस से बोलिए, शी हैज. प्रांजल, क्विक क्विक क्विक. Pranjal, can you hear me? Everyone, can you hear me? Yes. What happened, Pranjal? She has, I think she has some technical glitch perhaps. Okay, दीप्ति आपसे पूछते हैं. उसने पी लिया है. She has drunk.
शी हैज ड्रंक, एग्जैक्टली, शी हैज ड्रंक, उसने पी लिया है, राइट। इसका अगर आप पास्ट टेंस बनाते ना तो आप बोलते शी ड्रैंक, शी ड्रैंक। तो वो पास्ट, सिंपल पास्ट से बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम हैव और हैज के साथ उसका असर वर्तमान तक देख रहे हैं। शी हैज ड्रंक। या अरबाज कुछ कह रहे हैं आप? हाँ सर, आपने बोला उसने पी लिया है, तो सी क्यों आएगा? उसमें तो ही आएगा ना। अब देखिए, उसने जो है ना, उससे हमें ये थोड़ी पता चल रहा कि वो पुरुष है महिला है। हिंदी में बोलते हैं ना उसने, उससे कहाँ पता चला आपको, बताइए। हिंदी में उसने से थोड़ी पता चलता है वो कौन है व्यक्ति, शी है या ही है। वो तो कॉन्टेक्स्ट होगा तो आपने ही बोला तो भी ठीक है, आपने शी बोला तो भी ठीक है। गॉट माय पॉइंट। हिंदी में तो उसने ही तो बोलते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। महिला के लिए भी तो उसने ही बोलते हैं, उसके लिए कोई और तो वर्ड है ही नहीं ना। समझ में आ गया अरबाज? जी सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिता आप बताइए। हमने देख लिया है, हमने देख लिया है। किसने पूछा? आप लोगों ने ये सब सामान आपको बताया? हाँ, हमने देख लिया है। सरिता Yes, sir. बताइए, हमने देख लिया है। बताइए, हमने, हमको, We वी हैव, वी हैव, looking. ओके, रिलैक्स होके सोचिए। वी हैव एकदम सही बोला। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा तो आईएनजी तो नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। टू सी की क्रिया जो है उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? Look. ओके, वी हैव लुक्ड। आप टू लुक करके वॉच, जो टू लुक करके आप बोलना चाह रहे हैं, वी हैव लुक्ड। We have watched. वी हैव वॉच्ड, वी हैव लुक्ड, या फिर वी हैव सीन। Seen. वी हैव सीन, वी हैव सीन इज द बेस्ट ऑप्शन, बट हाँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो भी ठीक है। वी हैव वॉच्ड, वी हैव लुक्ड, या फिर वी हैव सीन। ओके, रुबीना, yeah, thank you, Sarita. You can be on mute now. Rubina, the question for you is, I'll listen to you, Dipti, but before that, quick question to Rubina. तुमने गा लिया है? आप अपने फ्रेंड को पूछो, तुमने गा लिया है? तुमने गाना गा लिया है? अच्छा। या रुबीना? Have you sung? वेरी गुड। हैव यू संग, हैव यू संग, हैव यू संग। और वही चीज टोन के साथ राजेश्वरी, यू हैव संग, You have sung? you have You have sung, sung. yeah, you have sung, you have sung, टोन लिया, you have sung, तुमने गा लिया है। या फिर जो रुबीना ने कहा, have you sung, You sung. have you sung, तो पहले स्थान पे have लगाया, दूसरे स्थान पे you लगाया और पीछे थर्ड फॉर्म लगा दिया, have you sung, राइट? ये भी एकदम ठीक है। ओके, अर्णा आप बताइए फटाफट से, एंड देन आई टेक दीप्ति's पॉइंट, मे बी शी हैज समथिंग टू से। अर्णा आप बताइए, हमने खा लिया है, हमने खा लिया है। We have eaten. एग्जैक्टली, वी हैव ईटन, हमने खा लिया है। आप चाहे तो हिंदी में इसको ऐसे भी बोलते हैं, हमने खा लिया, हमने खाया। मतलब इतनी वैरायटी है हिंदी में, बिकॉज आप समझते हैं। बट इंग्लिश में अभी क्या है कि मैं आपको हिंदी से जोड़ के बता रहा हूँ, आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि ये है, वो है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा हिंदी के साथ बेयर कीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट वेरी एप्ट कि हिंदी से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट टू गिव यू अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, एनी क्वेश्चंस दीप्ति? एनीवन, एनी क्वेश्चन यू हैव? दीप्ति बताइए। सर ये थर्ड फॉर्म जो लगाते हैं वो लर्न करनी पड़ेगी। वो लर्न करनी पड़ेगी, ऐसे हाँ, एकदम से दिमाग में नहीं आएगी। मान लीजिए जैसे था कि तुमने गा लिया है, हैव यू सिंग, नहीं sang, नहीं संग। तो इसका क्या तरीका है? बचपन में हम जो करते थे, सिंग sang संग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, राइट रोड रिटन, इस प्रकार का गाना गाना है आपको रोज शाम को 10 मिनट। वही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, राइट? तो दैट्स हाउ यू वुड एक्चुअली मेमोराइज, और कोई तरीका नहीं है। दैट्स हाउ यू वुड डू इट। सो आपको जो लिस्ट हमने भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको खोलिएगा और आंखें बंद करके उसको गाइएगा, ऑफ कोर्स एक बार याद करने के बाद। सो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। और फिर क्या करिएगा, अपने आप को चैलेंज दीजिएगा कि मैं 5-6 वर्ब्स लिखती हूँ या लिखता हूँ, और फिर मैं उसके बाद उसको बोलने का ट्राई करूंगा या करूंगी, और देखूंगा सही है या नहीं है, राइट? वो आपको देखना है, राइट दीप्ति? Yes, sir. या दीप्ति, हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ये से काम नहीं चलेगा, पूरा वाक्य बोलिए। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, I have understood. Yes, I have understood. Very good. Absolutely right. आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब अगर हमें नॉट लगाना है तो क्या करिएगा, हैव हैज के बाद नॉट लगा दीजिएगा, और उसके बाद आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगर हमें ये कहना होता प्रांजल, सर मैं नहीं समझी, सर मैं नहीं समझी, तो कैसे बोलेंगे प्रांजल?
Pranjal, can you hear me? Because I don't see you getting unmuted. No. All right. Rubina, how do you say, sir, मैं नहीं समझी? I have not understood. Exactly, sir, I have not understood. मैं नहीं समझी. I have not understood. Okay. अगर इसी तरीके से मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, या अरबाज, you want to say something? सर बोल सकते हैं सर, आई डोंट हैव अंडरस्टूड। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल गड़बड़ वाक्य है, ये नहीं बैठेगा। आई हैव नॉट अंडरस्टूड या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड। आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया अरबाज। या तो बोल दीजिए आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझता नहीं हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट, मैं समझता नहीं हूँ मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। सर ये जो टॉपिक है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ इज द राइट ट्रांसलेशन इन हिंदी। या फिर आई हैव नॉट अंडरस्टूड, मैं नहीं समझा हूँ। क्लियर है? जी सर। ओके, या अर्ना, यू वुड लाइक टू से समथिंग? So can it be I didn't understand? एग्जैक्टली हो सकता है, पर अभी हम उस पर गए नहीं है। वो जो डिड आप जो बोल रहे हो ना अर्ना, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, दैट वी विल सी व्हेन वी विल डू सिंपल पास्ट, राइट? जब हम सिंपल पास्ट करेंगे तब हम उसको देखेंगे, वरना भी सब कंफ्यूज जाएंगे, डिड कहां से आ गया सर, इसका क्या मतलब है? तो एकदम लाइट 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 चलेंगे। और जो आपने कहा अर्ना, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, दैट इज सिंपल पास्ट का नेगेटिव, वो हम बाद में देखेंगे, राइट? दैट्स करेक्ट, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं बोलने के, बट वी विल गो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग ईच सेक्शन कंप्लीटली। यहां तक डाउट किसी को? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट ओके? यस, Yes, sir. ओके। सो हमने काम पूरा नहीं किया है, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क। उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन फूड, अभी तक नहीं उसने खाना खाया। देखो इतनी देर से उसको कह रहे हैं ही हैज नॉट ईटन फूड। या फिर हमने फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म, राइट? इस तरीके से आप नेगेटिव में बना सकते हैं। आगे अगर प्रश्न है तो प्रश्न में अब क्या करना है आपको? डू या डज नहीं लगाना, अब आपको हैव या हैज लगा के आपका प्रश्न बनेगा। क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? राजेश्वरी आप बताइए, आप अपने फ्रेंड को पूछ रहे हो, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? You finished your work? Very good. Have you finished your work? Have you finished your work? Exactly. तो ये वर्तमान तक आता है, यानी अभी तक आप पूछो अपना काम अभी तक कर लिया है ना तुमने, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? इसका जवाब दीजिए राजेश्वरी, आप ही ने कहा नहीं मैंने अपना काम फिनिश नहीं किया है। I have not finished my work. Absolutely no, I have not finished my work. कोई और तरीका है इसी बात को कहने का? हैव नॉट को शॉर्ट करके कौन बोल सकता है? Yes, I have no. I haven't. Exactly. No, I have not finished my work. अन्यथा no, I haven't finished my work. I haven't finished my work. Correct. ये क्या बोलते रहिए जल्दी जल्दी अपने दिमाग में, उससे क्या होगा आपको याद रहेगा कि haven't बोलना है कि have not बोलना है, दोनों ही ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। ओके, फटाफट से अरबाज आप बताइए, तुम सोफी से मिल लिए हो? तुम सोफी से मिल लिए हो? अरबाज, एंड यू हैव मेट सोफी। वेरी गुड, यू हैव मेट सोफी, एकदम ठीक है। अब इसके पास दो ऑप्शन है आपके पास इसमें अरबाज, या तो प्रश्नवाचक टोन लगाइए इसी बात में, बोलिए, टोन लगा के बोलिए इसको। यू हैव मेट सोफी, you have met सोफी। वेरी गुड, यू हैव मेट सोफी, यू हैव मेट सोफी, एक तो टोन लगाया, या फिर इन्वर्जन कर दिया अरबाज, इन्वर्जन करके बताओ। हैव को पहले स्थान पे, देखिए हैव को पहले स्थान पे लाइए और सोफी को दूसरे स्थान पे, यू को दूसरे स्थान पे, सॉरी, यू को दूसरे स्थान पे। तो हैव यू मीट सोफी? मीट नहीं, मेट। हैव यू मेट सोफी? एग्जैक्टली, परफेक्ट। हैव यू मेट सोफी, तुम सोफी से मिल लिए हो, मतलब इस क्षण तक मैं पूछ रहा हूं, अभी अभी तक मिल लिए हो क्या? हैव यू मेट सोफी, अन्यथा यू हैव मेट सोफी, यू हैव मेट सोफी, ये भी तरीका सही है, इसमें आप क्या टोन लेते हो। चलिए दीप्ति आप बताइए, क्या उसने खाना खा लिया है? उस गर्ल के लिए पूछ रहे हो आप, किसी गर्ल के लिए पूछ रहे हो आप, क्या उसने खाना खा लिया है? दीप्ति, Has she eaten food? वेरी गुड, हैज शी ईटन फूड, या फिर शी हैज ईटन फूड, शी हैज ईटन फूड, हैज शी ईटन फूड, राइट। ओके, रुबीना आप बताइए, रुबीना फॉर यू इट इज
I'll give you another one. So क्या तुमने डांस कर लिया है? You have danced? हाँ, you have danced. No, sorry. हाँ ठीक है, नहीं नहीं सही है वो, पर आपने टोन अच्छे से नहीं लिया. टोन लीजिए, प्रश्नवाचक से. You have danced हाँ, you have or danced. have you danced? Very good. You have danced. Have you danced? दोनों ठीक है. Perfect. Okay, आप बताइए अर्णव, आपको बताना है. उसने गा लिया है. उसने गा लिया है. Did is it a female or male? हाँ, that's a female person. That's a female person. Yeah. Has she sung? Has she sung? Very good. Or she has sung. Has she sung? She has sung. दोनों ठीक है. Perfect. सरिता, आप बताइए. क्या हमने ले लिया है? क्या हमने ले लिया है? हमें कुछ चीज लेनी थी. आपने कंफर्म किया सरिता अपने फ्रेंड्स के साथ. क्या हमने ले लिया है? हमने ले लिया है. क्या है वर्ब? लेने की क्या होती है क्रिया? बताइए इंग्लिश में. Taken. या टू टेक. टू टेक, राइट? टू टेक. और टू टेक का या सरिता बताइए, टू टेक का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर याद है, कोई गेस कर सकते हैं तो. टू टेक. You have taken? या वेरी गुड. टेकन ठीक है. और लेकिन क्या हमने ले लिया है? तो हमने Took. नहीं, हाँ टुक सही है. थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ. वर्ब है टू टेक, सेकंड फॉर्म हो गया टुक और थर्ड फॉर्म हो गया टेकन. सो व्हाट सरिता सेज इज करेक्ट. इस प्रश्न को फिर से बनाइए सरिता. क्या हमने ले लिया है? You have taken? हमने. हमने. वी हमने. तो क्या बोलोगे आप? We. तो बताइए क्वेश्चन सरिता. Have we taken? वेरी गुड. हैव वी टेकन. मतलब आपको एकदम से याद नहीं आया, आप ऑटो में बैठ के, गाड़ी में बैठ के आपने कहा अरे वो ले लिया था क्या अपन ने? हैव वी टेकन आवर बैग? क्या हमने हमारा बैग ले लिया है क्या? हैव वी टेकन आवर बैग? जो भी चीज थी, राइट? क्लियर है. तो ये आपको ध्यान रखना है. जो दीप्ति का पॉइंट था वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि सर हमें क्या याद करना रहेगा. बिल्कुल याद करना पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा. आपको देखना है टेक, टुक, टेकन, सिंग, sang, sung, राइट, रोट, रिटन. ये सारे आपको याद करने हैं, राइट? ओके. साक्षी या सरिता, यू कैन बी ऑन म्यूट नाउ. Yes, sir. Yeah. Sarita, could you be on mute, please? It's something imperative. Everyone has to be on mute once you have spoken. Thank you. Once you have spoken. एक बार आप बोल लिए हैं, उसके बाद आपको म्यूट पे रहना पड़ेगा. चलिए साक्षी, फटाफट से आप बता दीजिए हमारे को. आपके लिए मैं वर्ब यूज करता हूं. उन्होंने दे दिया है. उन्होंने. प्रश्न है क्या उन्होंने दे दिया है? क्या उन्होंने दे दिया है? Have Have और उन्होंने. have they Yes. have they taken? नहीं, टेकन तो लेना होता है, देना. Give हाँ, given. given. Have they given? Have they given? उन्होंने दे दिया है. मतलब उनको बैग उनको देना था किसी और को. उनको सोफी को बैग देना था. Have they given the bag to Sophie? Have they given the bag to Sophie? Right? क्लियर है आपको? चलिए. Yes, sir. परफेक्ट. फटाफट से प्रांजल के साथ चेक कर लेते हैं. प्रांजल आप बताइए. I don't know if I've already asked you or not, but I'll re-ask you. Pranjal, can you hear me? Yes, sir. Yeah, I think there was some technical bit glitch in some sense. I couldn't hear you. Yes. Okay, आपको बताना है प्रांजल. क्या वो यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है. क्या उसने लिख लिया है? क्या उसने लिख लिया है? Has she written? Absolutely. Has she written? Has she written? Yes, she has written. No, she has not written. No, she hasn't written. Clear है सभी को? Everyone? Yes? Yes, चलिए, great. चलिए फटाफट से हम अब अपने होमवर्क पे आते हैं, बिकॉज ये वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया. ये इसको भी हम छोड़ते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी हम नहीं करेंगे. हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको फटाफट से होमवर्क दिखाता हूँ. उस होमवर्क में हम चलते हैं, बिकॉज आप लोगों ने शायद होमवर्क किया है, आई एम श्योर. या नहीं किया है तो हम साथ में कर लेंगे. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. So I'll just quickly open the homework for you. I think it would, I'll just open it this way.
long press and go here. I'll open it up from this one. Okay. चलिए, सो अगर आप याद करेंगे तो आपको सबसे पहले याद आएगा हमारा जो टेंस हमने सीखा था, which was simple present. चलिए, आपको हैंड रेस करना है, मैं फटाफट से पूछता रहूंगा. पहला वाला she, number 1 ring, that's अर्णा. अर्णा बताइए नंबर 1. She plays the piano every evening. वेरी गुड. शी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग. मीनिंग बताइए फटाफट से हिंदी में. ये पियानो बजाती है हर इवनिंग. हाँ, वो हर शाम को पियानो बजाती है. राइट, वो हर शाम को पियानो बजाती है. तो वो ऐसा एक्शन है जो हर दिन होता है, इसलिए हमने इसमें सिंपल प्रेजेंट याद काम मिली है. चलिए सेकंड वन, राजेश्वरी. They go to the gym twice a week. वेरी गुड. मीनिंग बताइए. वो जिम हफ्ते में 2 बार जाते हैं. एब्सोल्युटली, वो हफ्ते में 2 बार जिम जाते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट इज रुबीना. थर्ड वाला बताइए रुबीना. हैंड रेस करके रखिए सब लोग फटाफट से, मैं पूछता रहूंगा. रुबीना. The dog barks when it sees strangers. एग्जैक्टली, द डॉग बार्क्स व्हेन इट सीज स्ट्रेंजर्स. क्या मतलब है इसका रुबीना? वो कुत्ता भौंकते हैं जब वो किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं. एब्सोल्युटली. चलिए नेक्स्ट है दीप्ति. बताइए. We study English every day. वी स्टडी. स्टडी की स्पेलिंग बताइए दीप्ति. STUDY. STUDY. वेरी गुड. और याद है ये वाला रूल कि जब DY में हमारा खत्म होता है वर्ब तो हम ही, शी और इट में क्या लगाते थे? IES. वेरी गुड. हाँ, यहाँ नहीं लगाना है. तो इसका क्या मतलब है इसका दीप्ति? वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे. हमें इंग्लिश डेली पढ़नी चाहिए. नो, नॉट एट ऑल. ये तो नहीं है इसका मतलब. वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. क्या मतलब है इसका? हम हर दिन इंग्लिश हम पढ़ते हैं. हाँ. अब ये तो आपको अपने दिल पे हाथ रख के बोलना पड़ेगा कि आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते. ये तो बहुत, ये सवाल तो आप सभी के लिए. डू यू स्टडी इंग्लिश एवरी डे? यस आई डू. यस आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे. यस आई डू स्टडी इंग्लिश एवरी डे. चलिए, अब ये आई डू जो कह रहा है अपने मन में चेक कर लेना भाई, फिर ये नहीं हो कि आप कह दो हाँ और यहाँ पे फिर आप परफॉर्म नहीं करो. चलिए नेक्स्ट, फटाफट से आगे बढ़ते हैं. वी हैव अरबाज. अरबाज बताइए फिफ्थ वाला. He likes to read mystery novels. ओके. आपकी आवाज थोड़ी एको करती है तो आई कैन नॉट गेट यू प्रॉपर्ली. कुड यू जस्ट रिपीट वंस अरबाज? ही. Okay. He likes to read Yeah. mystery novels. ओके, ठीक है, आंसर सही है. थोड़ा सा इसके उच्चारण पे काम कीजिए. एवरीवन, ही लाइक्स टू रीड मिस्ट्री नॉवेल्स. मिस्ट्री को खींचना नहीं है. मिस्ट्री नॉवेल्स थोड़ा सा और उसको राउंड करके सॉफ्टली बोलना है. इस पे आप हमेशा ध्यान दीजिए, बिकॉज ये क्या है, बोलने का जो काम है ना वो साथ ही साथ चलेगा. करेक्ट बोलना. आप ग्रामर सीख रहे हैं, टेंसेस सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, वोकैबुलरी सीख रहे हैं, लेकिन उच्चारण जो है वो इंटीग्रेटेड है, वो तो शामिल है, उसको अलग से नहीं सिखा रहा मैं. उस पर काम करते रहिए, जहां जहां गड़बड़ होगी वहां बता दूंगा. सो ही लाइक्स टू रीड मिस्ट्री नॉवेल्स. उससे मतलब क्या मतलब है इसका अरबाज? वह नोवेल पढ़ना पसंद करता है. मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता है. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट हम पूछते हैं. बाकी लोग हाथ नहीं रेस कर रहे. व्हाट अबाउट प्रांजल? प्रांजल आप बताइए सिक्स्थ वाला. I work from home on Fridays. आई वर्क फ्रॉम होम ऑन फ्राइडेज. क्या मतलब है इसका? मैं फ्राइडे मैं फ्राइडे को या फ्राइडेज को, हर फ्राइडे को कहां से काम करता हूं या करती हूं? आई वर्क फ्रॉम होम. मैं घर से काम करता हूं या घर से काम करती हूँ. चलिए परफेक्ट. ओके, सेवेंथ वन विल आस्क अर्णा. Yes, sir. द सेवेंथ वन. The seventh one, yeah. The train leaves at 9 a.m. every morning. या द ट्रेन लीव्स एट 9 AM एवरी मॉर्निंग. मतलब बताइए इसका फटाफट से अर्णा. ट्रेन 9 बजे हर सुबह निकलती. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है. ट्रेन हर दिन सुबह 9 बजे निकलती है. परफेक्ट. ओके नेक्स्ट आई आस्क साक्षी. साक्षी आप बताइए नंबर 8.
Yeah. The children play in the park after school. हाँ, the children play in the park after school, क्या मतलब है इसका साक्षी? बच्चे शाम के टाइम पार्क में खेलते हैं. हाँ, बच्चे स्कूल के बाद पार्क में खेलते हैं, वो एक एक्शन है जो बार बार होता जाता है. वेरी गुड. ओके, 9th वन, राजेश्वरी 9th वन बताइए. I'm sorry. She Yeah. arrives. Yeah. She arrives in the park after school. No, I think the 9th one. 9th one. She arrives. She arrives on time. Yeah, she always arrives on time. She always arrives on time. क्या मतलब है इसका राजेश्वरी? She always arrives on time. वो हमेशा टाइम पर आती है. हाँ, वो हमेशा समय पे पहुंचती है. वेरी गुड. चलिए 10th वन, दीप्ति बताइए. Sarita, you want to say something? You want to try this one, Sarita? 10th one. Yes, sir. हाँ, बताइए सरिता. My mother's cook because means My mother के बाद क्या लिखेंगे आप? cooks. 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 और कैसा भोजन बनाती है? Because means. हाँ, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इस वर्ड का? एवरीवन, एनीवन? हाँ. Yeah, so the pronunciation is delicious, right? Delicious. Yeah, so my mother cooks delicious meals. वो बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाती है या बनाती है. चलिए रुबीना, next one. Bird flies in the sky. Bird flies या fly? Flies. FLIES. बट यहाँ तो खूब सारी चिड़िया हैं. रुबीना, यहाँ तो खूब सारी चिड़िया हैं, फिर आपने फ्लाइज क्यों बोला? सिंगुलर पे सब तीन होगा ना, वाई के बाद IES हो जाएगा ना. बिल्कुल, आपका रूल तो एकदम ठीक है, पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ना, बर्ड नहीं है, बर्ड्स है. बर्ड. ये तो plural है. हाँ, ये Birds fly in the sky. एग्जैक्टली. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. जो पक्षी है वो आकाश में उड़ते हैं. परफेक्ट. ओके. नो नो, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. देखिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अब गलतियां हम कर रहे हैं बिकॉज वो हो सकता है ध्यान नहीं दिया. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ओके, लेट्स कैरी ऑन. लेट्स मूव अहेड विद अरबाज. अरबाज बताइए फटाफट से 12th वाला. John helps his father in the garden every weekend. Absolutely. John helps his father in the garden every weekend. क्या मतलब है इसका? जॉन के फादर, जॉन के पिता एवरी मतलब हमें प्रत्येक वीकेंड पे गार्डन में होते हैं, हेल्प करते हैं. नहीं, जॉन के पिताजी नहीं हेल्प करते. कौन है? सॉरी सर, बोल रहा जॉन अपने फादर का प्रत्येक हेल्प करते हैं गार्डन में. Okay, I can understand that you understand it. So it says John helps his father in the garden every weekend. John अपने पिताजी की गार्डन में हर वीकेंड पे सहायता करता है. ठीक है? मीनिंग क्लियर है अरबाज आपको? यस सर. हाँ, देखिए हिंदी में बोलना थोड़ा कई बार मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप क्या अंग्रेजी में पढ़ के फिर उसको हिंदी में वैसे ही बोलना चाह रहे हैं जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर हिंदी में अलग तरीके से बोलते हैं. अगर मीनिंग क्लियर है तो ओके. हम यहाँ पे हिंदी नहीं टेस्ट कर रहे. अभी ये हिंदी में देखो आपने गड़बड़ बोला. हिंदी आप अपनी दुरुस्त बोलते ही हैं और बोल भी लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो इंग्लिश में आपको समझ में आना चाहिए व्हाट द मीनिंग इज. ओके, क्विकली वी मूव अहेड. नेक्स्ट दीप्ति आप बताइए 13. They live in a big house. दे लिव इन अ बिग हाउस. क्या मतलब है इसका? दे लिव इन अ बिग हाउस. वे बड़े घर में रहते हैं. वे बड़े घर में रहते हैं. 14th वन, रुबीना आप बताइए. The sun sets in the east. वापस से बोलिए. The sun sets in the west. हाँ. Sorry. Okay, yeah, the sun sets in the west. The sun sets. जो sets में थोड़ा सा स्व की ध्वनि है, इस पे काम कीजिएगा. ये सुनाई देनी The चाहिए. sun sets Yeah, better this time. अच्छा है. मेरे को पहले भी सुनाई दी थी पर in the बहुत. west. Yeah, the sun sets in the west. Perfect. Okay, the 15th one, I'll ask whom should I ask? Rajeshwari, बताइए. The baby cries when he is hungry. Absolutely, the baby cries. Cries की spelling Rajeshwari? CRIES. Very good. CRIES. The baby cries when he is hungry. क्या मतलब है इसका?
बेबी जब भूखा होता है तब रोता है. एग्जैक्टली बेबी रोता है जब वो भूखा होता है, बेबी जब भूखा होता है तब वो रोता है, बिल्कुल ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट प्रांजल, यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड प्रांजल। नो प्रांजल, कुड यू ट्राई द नेक्स्ट वन, 16 वाला प्रांजल। I take breakfast at 7 a.m. ओके, आई टेक ब्रेकफास्ट। इसको थोड़ा अच्छे से बोलिए सब लोग, ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, फर्स्ट ब्रेकफास्ट। Breakfast. राइट, इसमें जो शब्द है वो फास्ट जैसा है, FAST, फास्ट, बट हम इसको फास्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM। परफेक्ट। क्या मतलब है इसका प्रांजल, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM? मैं ब्रेकफास्ट 7 a.m. को लेती हूँ. हाँ, मैं सुबह का नाश्ता जो है वो 7 बजे लेती हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM। परफेक्ट। ओके, 17th वन आई विल आस्क दीप्ति। दीप्ति बताइए 17वां। My brother wash the car every Sunday. ओके, एक गड़बड़ है इसके अंदर, वॉश तो नहीं आएगा। वॉश तो आपने क्या स्पेलिंग बोला? WASHEAED. ईडी, ईडी तो आप पास्ट में चले गए, पास्ट में नहीं जाना है। No, sir. क्या लगाएंगे हम? SH। याद कीजिए आप, SH में जो खत्म होते थे दीप्ति, उनके थर्ड फॉर्म, आई एम सॉरी, उनके थर्ड पर्सन में हम क्या लगाते थे? ES. ES। हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको? माई ब्रदर Washes. washes। माई ब्रदर washes the car every Sunday। क्या मतलब है इसका? मेरा भाई हर संडे कार धोता है. एग्जैक्टली, मेरा भाई हर संडे को गाड़ी धोता है। दैट्स करेक्ट। वॉशेस, अब होता सर, क्या? ये या जो वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं, हाँ जी, सर वो एक बार मेरे को वापस समझना था कि देखिए वर्ब में चेंजेस कैसे आते हैं। प्लूरल और यस सर. देखिए, वर्ब के अंदर चेंजेस जो आएंगे ना, वो सिर्फ एक ही लेवल पे आएंगे, और वो है ही, शी और इट वाले में। बाकी में जीवन बड़ा आसान है, कैसा भी वर्ब वो बड़ा आसान काम है। उसमें मेन वर्ब उठा लीजिए आप, फ्लाई है, क्राई है, ट्राई है, ईट है, सब में सेम 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 रहेगा। सारे के सारे परिवर्तन जो होते हैं वो ही, शी और इट वाली कैटेगरी में होते हैं। बाय चांस आपके इस उदाहरण में भाई आ गया, भाई ही कैटेगरी में है, तो वहां पे परिवर्तन होना था। अब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? 4 प्रकार के परिवर्तन है। पहला परिवर्तन कि हमेशा रेगुलर जो क्रियाएं हैं उनमें एस लगा दो आप, थर्ड पर्सन के लिए। ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, एस एस एस। याद है आपको? यस सर. फिर हमने दूसरा रूल क्या देखा था दीप्ति? जो क्रियाएं ओ में खत्म हो, सी एच में खत्म हो, एस एस में खत्म हो, एस एच में खत्म हो, उन क्रियाओं के अंदर एस एच में खत्म हो, उन क्रियाओं के थर्ड पर्सन के अंदर ई एस लगता है, सिर्फ थर्ड पर्सन में। याद है आपको? तो भाई के लिए क्या हो गया? वॉशेस हो गया। ये हमने दूसरा रूल देखा था। इसमें अच्छी बात क्या होती है कि आई में कोई परिवर्तन नहीं, आई वॉश, यू वॉश, बट ही, शी, इट वॉशेस, वी वॉश एंड दे वॉश, वो सेम रहता है, ये ध्यान रखना है। और फिर हमने 2 और रूल देखे थे, राइट दीप्ति? 2 और रूल देखे थे हमने। अगर मेरी क्रिया वाई लेटर में खत्म होती है, वाई लेटर में, और उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, जैसे हमारे पास एक शब्द था ट्राई, क्राई, फ्राई, इन शब्दों के अंदर हम क्या करेंगे? हमारे जो ही, शी और इट जो थर्ड पर्सन, आई ई एस लगा देना आप, ठीक है? जो अभी राजेश्वर ने बेबी वाला करा था ना, क्राइज, द बेबी क्राइज। और आखिरी हमने देखा था कि अगर मेरी क्रिया वाई में खत्म है लेकिन उसके पहले एक एक वोवल आता है, तो हमें फिर आई ई एस नहीं लगाना, हमें सिंपल एस लगाना है, सिंपल एस, सिंपल एस। जैसे हमने देखा प्ले, से, तो ही, शी, इट में ही सेज, इट सेज, शी सेज, या फिर ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज। ये रूल है। सर, ये एग्जैक्ट टाइम पे कैसे क्लिक करेगा माइंड में? ये करेगा जब आप बहुत 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 बोलेंगे अंग्रेजी, बस दैट्स द ओनली वे। अब मेरे को ध्यान था कि आपने जब ये वाक्य बोला ना, तो माय ब्रदर वॉश द कार एवरी संडे। अब आपको इसलिए बॉदर नहीं किया दीप्ति, क्योंकि आपने इतना इसको काम में लिया ही नहीं है। अगर आप इसको काम में लेते तो आपको ये बॉदर करता कि अरे मैंने गलत बोल दिया, आपको खुद को रियलाइजेशन होता। अब जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो, आप बोल के बताइए, बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ दीप्ति, मैं टीचर हूँ, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? आई एम अ टीचर। परफेक्ट। अब आपने ये तो नहीं बोला आई आर अ टीचर, आई इज अ टीचर, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है, इतना आपने उसको अभ्यस्त कर दिया है कि आई के साथ एम ही निकलता है मुंह से। तो उतना ट्रेन कर दीजिए अपने दिमाग को कि माय ब्रदर वॉशेस द कार एवरी संडे होगा। तो इसकी ट्रिक नहीं, कैसे?
कैसे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सारी वर्ब्स खोलिएगा सामने और बोलिएगा आई वॉश, यू वॉश, ही वॉशेज, शी वॉशेज, इट वॉशेज, वी वॉश एंड यू वॉश एंड दे वॉश। ओके सर। फिर डू या डज लगता है तो आपको याद आना चाहिए दीप्ति कि फिर सर ने सिखाया वॉश 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 चलता है। आई डू वॉश, यू डू वॉश, ही डज वॉश, शी डज वॉश, इट डज वॉश, देन यू डू वॉश, वी डू वॉश एंड दे डू वॉश। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो कहने वाला है समझ में सर इसकी पीडीएफ सेंड करिए आपने शायद। मैंने आपको थर्ड फॉर्म की पीडीएफ सेंड करी है, वो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा सारा जो थर्ड फॉर्म्स है। और ये तो हमने जो रूल किया है उसके हिसाब से देखिए, इसकी तो मैं पीडीएफ आपको दे नहीं पाऊंगा कि हर एक क्रिया की हम बनाए आपके लिए, राइट? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ रूल पता चल गया, आप प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए हमने होमवर्क दिया था आपको प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? और फिर आपकी जो नोटबुक है एवरीवन, उसमें लिखिए स्टार लगा के, ये वॉश जो है ये मुझे आता नहीं था, मुझे इसको याद करना है, ये आता नहीं था मुझे याद करना है। इससे क्या होगा कि आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन वर्ब्स को देखेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, एंड देन यू ट्रेन योरसेल्फ फॉर दैट। दैट्स द ओनली वे, बिलीव मी। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? या वी स्टिल हैव फ्यू मिनट्स। ओके, सो नेक्स्ट वन, दे डैश। ओके, व्हाटएवर द सेंटेंसेस, we'll ask whom should we ask? Let's see. We'll ask Sarita. Sarita, can you help us with this one? You haven't spoken much. Sarita, आप ट्राई करेंगे 18th वाला? They played the piano at the concert last night. नहीं, आप कौन से पहुंच गए? आप ये वाला कह रहे हैं हम सरिता, 18th वाला है ना, ये पढ़िए। They celebrate Christmas with their family. एकदम अच्छा पढ़ा, क्रिसमस विद देयर फैमिली, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। दे भी अच्छा पढ़ा। इस शब्द को क्या पढ़ा आपने सरिता? वापस पढ़िए। Celebrate. सेलिब्रेट पढ़ रहे हैं ना या सेलिब्रेट्स पढ़ रहे हैं? Celebrates. दे के साथ क्या लगाएंगे? दे सेलिब्रेट या दे सेलिब्रेट्स? Celebrates. ऑफ कोर्स नॉट, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट। हम दे के अंदर एस कहां लगाते हैं सरिता? याद कीजिए, हम सिर्फ ही, शी और इट के केस में सेलिब्रेट्स बोलते हैं, अन्यथा सेलिब्रेट। याद है आप सभी को? सो दे सेलिब्रेट क्रिसमस विद देयर फैमिली, क्या मतलब है इसका सरिता? दे सेलिब्रेट क्रिसमस विद देयर फैमिली। हम सब क्रिसमस अपने फैमिली के साथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम नहीं, दे दे दे, वे, हिंदी का वे लोग, वे सभी अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, क्योंकि अभी क्या है, हिंदी में इसलिए जोड़ना जरूरी है क्योंकि अभी आपका ब्रेन जो है वो हिंदी से कनेक्ट करके ही समझ रहा है चीजों को, इसलिए आपको करेक्ट पता होना चाहिए। या सरिता, यूड लाइक टू से समथिंग? कुछ बोल रहे हो आप? ओके, चलिए म्यूट पे आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन वी हैव द 19th वन। आई विल आस्क राजेश्वरी। 19th वन बताइए राजेश्वरी। She speaks 3 languages fluently. Absolutely, she speaks 3 languages fluently. क्या मतलब है इसका? वो 3 भाषाएं बहुत अच्छे से बोलती है। परफेक्ट, वो 3 भाषाएं धारा प्रवाह बोलती है, वो बहुत अच्छे से बोलती है। वेरी गुड। ओके, और अंत में हमारे पास है 20th सेंटेंस। वील आस्क दीप्ति। दीप्ति बताइए। We visit our grandparents every summer. हाँ, we visit our grandparents every summer, क्या मतलब है इसका? हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हर गर्मी घूमने जाते हैं। घूमने नहीं जाते, हम उनसे मिलने जाते हैं, हम उनको विजिट करते हैं ना, उनसे मिलने जाते हैं। ये सही। हाँ, उनके साथ कहीं घूमने नहीं जाते। सो वी विजिट आवर ग्रैंडपेरेंट्स एवरी समर। सो हम मिलने जाते हैं हमारे ग्रैंडपेरेंट्स से हर गर्मियों के समय में, गर्मी की छुट्टियों में। विजिट मींस घूमना एंड मिलना। देखिए, हाँ, अब देखिए, विजिट होता है घूमना, लेकिन वो कोई दार्शनिक स्थल होना चाहिए। अब ग्रैंड पेरेंट्स तो लिविंग बीइंग्स हैं, उनसे मिल सकते हैं हमें ना, तो आप वरना हिंदी में गड़बड़ हो जाएगा। तो लेकिन आप कहोगे कि सर मैं ये कैसे बोलूं कि मैं अपने नहीं, वी मीट। देखिए, मीट करने का मतलब भी होता है कि मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हूँ। वी मीट, आई मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द वीकेंड्स। मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहीं रहते हैं थोड़ी दूरी पे और आप उनसे सप्ताहांत में मिलने जाते हो दीप्ति, तो आप कहोगे आई मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द वीकेंड्स। वो ठीक है, मैं उनसे मिलती हूँ। लेकिन
विजिट करने का मतलब होता है कि आप बहुत लंबे समय के बाद उनसे मिलते हो और उनके साथ लंबा समय स्पेंड करते हो, तो हम विजिट यूज करते हैं इंसानों के लिए। क्लियर है सभी को? Yes, sir. परफेक्ट, चलिए। Yes. ऑलराइट, ग्रेट। सो अब देखिए, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। मेहनत से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सो ये तो ऐसा एक इलाज है, एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको करना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं फटाफट से होमवर्क बताता हूं आपको। सिंपल पास्ट टेंस पे अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जाइएगा। क्या करना है आपको, बड़ा आसान से मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे होमवर्क बोल देता हूं। आपको ईडी लगाना है और आपका काम हो जाएगा। ईडी, सिर्फ ईडी लगाना है, या फिर उस लिस्ट को देखना कि उसके अंदर अगर वो ईडी के अलावा वर्ब है। जैसे आपने बताया था मुझे कि सर ड्रिंक का होता है ड्रैंक और ड्रंक, तो ड्रैंक वाला वर्ड उठाना है। तो सिंपल पास्ट बहुत सिंपल होता है, उसमें क्या करते हैं, हम एक शब्द उठाते हैं और वो लगा देते हैं जो हमारी सेकंड लिस्ट में से था। यानी कि टू राइट, रोट, रिटन। तो रोट जो है ना, WROT, वो रोट शब्द उठाना है, या फिर ईडी वाले उठा लीजिएगा, तो उसको भर दीजिएगा। मीनिंग साथ में हम अगली क्लास जो मंडे को है तब देखेंगे, कल हम नहीं मिल रहे हैं, आपको मैं सिर्फ होमवर्क दे रहा हूं। तो हम उस क्लास में जब मिलेंगे तब आप इसमें वो वाला फॉर्म लगाइएगा, सेकंड फॉर्म इसके अंदर ट्राई कीजिएगा, इसके मीनिंग्स निकाल के रखिएगा। और गड़बड़ होती तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं है, इसलिए आई कैन एक्सपेक्ट सम इश्यूज इन दिस वन, बट स्टिल ट्राई इट। आगे मैं आपको बताता हूं, आपको करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट। ये तो आपने सीख लिया है। एक उदाहरण देख लेते हैं, अभी हमारे पास है कुछ मिनट्स। चलिए, आप ट्राई कीजिए। अर्णा, शी डैश हर होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे करेंगे? She, sir, present perfect. सॉरी, शी She, yes. She finishes her homework. नो 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 बेटा, शी फिनिशेस हर होमवर्क नहीं है। अभी हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, अभी हम चले गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। याद करिए प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता था, हैव या हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैव या हैज प्लस थर्ड फॉर्म। याद है आपको अर्णा? Yes, sir. बताइए। शी के साथ क्या लगाओगे, हैव या हैज? Has. शी हैज। Has. और फिनिश का थर्ड फॉर्म, She, huh? फिनिश का थर्ड फॉर्म Finish. finished, 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 finished। याद है थर्ड फॉर्म्स वाली लिस्ट? Yes or no everyone? Yes, sir. Yes, sir. याद है ना आपको? एग्जैक्टली। तो ये वाला तो होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा, राइट? इसमें क्या करना है, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू से इन हिंदी। दे हैव विजिटेड द न्यू म्यूजियम, उन्होंने नया म्यूजियम देख लिया है। क्लियर है सभी को? दीप्ति, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये गृह कार्य Yes, sir. घर पे कीजिएगा। अब खूब सारा समय दे रहा हूं मैं आपको, कल का समय दे रहा हूं, शनिवार का समय दे रहा हूं, रविवार का समय दे रहा हूं। I'm giving you 3 days at a stretch. On Monday when we meet, I would like to see this homework. Is that okay? Are you all up for it? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Absolutely, absolutely. तो ये आप करके रखिएगा पूरा। इसका आप मुझे ट्रांसलेशन भी सुनाएंगे हिंदी में क्या होता है। और ये फोर्थ वाला छोड़ दीजिएगा, बस इतना करना है। ये आपको मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप में भेज दिया है ये होमवर्क, इसको अच्छे से करिएगा। ग्रुप में आप बहुत एक्टिव रहिए, सवाल पूछिए, जवाब दीजिए, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजिए मुझे इतना अच्छा लगेगा। पर आप भेजते नहीं हो, थोड़ी रिकॉर्डिंग करके भेजा करो आप लोग, लॉन्ग प्रेस करके। हेलो सर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट माय वर्क इन द स्कूल, आई डिड दिस टुडे। भेजिए, कुछ भेजिए वहां पे, लिख के बोल के बताइए मुझे, तभी तो मजा आएगा। वरना इस 1.5 घंटे में क्या सीख लेंगे हम? ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट, ग्रामेटिकल पार्ट, यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। होमवर्क कीजिए, इस 1.5 घंटे का आपको 3 टाइम्स करना पड़ेगा अपने लेवल पे। समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत कीजिए। या साक्षी, यू आर सेइंग समथिंग? Yes, sir. Sir, हमारी क्लासेस अब मंडे को चलेंगी क्या? हाँ, मतलब कल आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड, इसलिए मैं कल नहीं मिल पा रहा हूँ। वीकेंड पे तो वैसे भी नहीं मिलते हम लोग। अब हम आपसे सोमवार को मिलेंगे उसी समय 5 बजे, 5:10 पे, और फिर कैरी ऑन करेंगे। तो टोटल जो 40 आवर्स हैं हम उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको इससे टाइम भी मिल रहा है कि आप कल नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पास होमवर्क करने का, कई लोगों को डाउट था सर हमें होमवर्क करने का समय नहीं मिलता है, तो आप लोग अच्छे से होमवर्क कीजिएगा। अब सोमवार को यदि आपने होमवर्क नहीं किया तो फिर दैट विल बी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। आपको याद है, आई शुडंट से, मुझे ये नहीं कहना चाहिए हाउ डिसअपॉइंटिंग। क्या मतलब है इसका, हाउ डिसअपॉइंटिंग?
बहुत ही निराशाजनक। हाँ, बहुत निराशाजनक। तो मैं आप लोगों से बहुत उम्मीदें रखता हूँ। I have a lot of hopes from you all. So please stick up. I mean, live up to that expectation and do well. So very simply, I'll say, yeah. Someone wants to say something. Who's that? Do we need to do the second and the third one too, like homework, or Yeah. just this one? नो नो बेटा, सेकंड वाला भी ट्राई कीजिएगा। सेकंड वाला है सिंपल पास्ट। आई हैव नॉट येट टॉट यू, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, बट उसमें बड़ा सिंपल सा रूल है। सेकंड फॉर्म जो वर्ब्स की लिस्ट है उसमें से उठा के रख दीजिएगा। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो हम मंडे को डिस्कस करेंगे, और अगर समझ में आ जाए तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना ना भूलिएगा। राइट? Thank you. All right, thank you. So with that, we have come to the end of our today's session. I wish you a great evening ahead, or a great day, whatever your situation is, and have a great time doing your homework and talking in English, and see you on Monday at 5:10. Thank you. Take care. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone.